بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ میرا تعلق ایک بڑی جاگیردار فیملی سے تھا جس کا اپنے علاقے میں خوب اثر و رسوخ تھا۔ میرے دادا اور نانا دونوں ہی اپنے وقت کے کامیاب سیاستدان رہے تھے۔ یوں کہنا چاہیے سیاست ہماری فیملی کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ہمارے ملک میں سیاست ایک بازی ہے، جو الیکشن جیت جائے اس کی لاٹری نکل آتی ہے۔ تبھی سیاست سے وابستہ افراد الیکشن جیتنے کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ بیشتر کا مقصد عوام کی خدمت کرنا نہیں ہوتا بلکہ دولت کمانا ہوتا ہے۔ اسی سیاسی سوچ نے ہمارے گھرانے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ الیکشن میں میرے چچا نے جس پارٹی سے حصہ لیا وہ نانا جان کی مخالفت میں پیش تھی۔ نانا نے ہمارے دادا کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ اس طرف سے الیکشن نہ لڑے کیونکہ یہ ہماری مخالف لوگ ہیں، مگر دادا جان کو اپنا مفاد اسی میں دکھائی دیا کہ ان لوگوں کو ساتھ دیں جو نانا جان اور ماموں کی سیاسی حریف بلکہ دشمنی کی حد تک مخالف تھے۔ بس یہاں سے بات بگڑ گئی۔ ہمارا خاندان دولت مند ہی نہیں روشن خیال بھی تھا۔ جہاں ہم لوگ روایت پسند تھے وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا بھی رواج تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے یہاں دولت اور تعلیم کی کمی نہیں تھی۔ تبھی ہمارا شمار شہر کے معززین اور امیر کبیر خاندانوں میں ہوتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ نانا اور دادا جان میں الیکشن کی وجہ سے جھگڑا چل پڑا۔ بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے نانا امی جان کو گھر لے آئے اور واپس سسرال نہ جانے دیا۔ نانا جان کی بات دادا ابو نے نہ مانی تو انہوں نے بیٹی کو گھر بٹھا لیا، جس پر دادا نے میری والد صاحب کو مجبور کر دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ بابا جان میری امی کو طلاق دینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو بیوی سے بہت محبت تھی، لیکن الیکشن کے جھگڑے کی وجہ سے تلخی اتنی بڑھی کہ صلح کی گنجائش نہ رہی۔ نانا کہتے تھے کہ تم لوگ میرے دشمنوں کو ووٹ دے رہے ہو کہ وہ جیتنے کے بعد مضبوط ہو کر ہم پر پل پڑے۔ یوں جھوٹی انا کی خاطر دادا جان نے میرے باپ کو مجبور کر دیا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے۔ بابا جان نے مجبوراً امی کو طلاق دی لیکن بچے اپنے پاس ہی رہنے دیے۔ امی کی طلاق کے چند ماہ بعد میں نانا جان کے گھر پیدا ہوئی تو دادا جان نے مطالبہ کیا کہ ہماری نومولود بچی کو بھی ہمارے حوالے کر دو۔ نانا جان نے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ میں بھی بہت چھوٹی تھی۔ میری زندگی کا دار و مدار ماں کے دودھ پر تھا۔ دادا جان بہت انا پرست تھے۔ وہ کب ہار ماننے والے تھے۔ اپنے اثر و رسوخ کے گھمنڈ میں انہوں نے عدالت میں کیس دائر کر دیا، مگر وہ یہ کیس ہار گئے کیونکہ جج نے امی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور حکم دیا کہ بچی کو 7 سال تک ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ یوں میں 7 برس تک اپنی امی کے ساتھ رہی۔ اس دوران نانا اور ماموں نے میری والدہ پر کئی بار زور ڈالا کہ وہ دوسری شادی کرنے پر آمادہ ہو جائیں، مگر انہوں نے ہر بار انکار کر دیا۔ ان کو میری جدائی کسی صورت گوارا نہ تھی۔ ادھر دادا کب آرام سے بیٹھنے والے تھے۔ جو ہی میں 7 برس کی ہوئی انہوں نے ایک بار پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ 3 سال متواتر وہ میری واپسی کا مطالبہ کرتے رہے۔ کئی طرح سے دباؤ ڈالے، جرگے، پنچایت، عدالت، غرض ہر حربہ استعمال کیا۔ بالآخر میں 11 برس کی عمر میں والد صاحب کے پاس آ گئی۔ بابا جان کے گھر میں میرا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ میری دیکھ بھال ایک آیا کے ذمہ تھی، لیکن یہ قدرتی بات تھی کہ میں اپنی ماں کو نہیں بھول سکی۔ ہر وقت ان کو یاد کر کے روتی تھی۔ بابا کے گھر میں میرے ساتھ کھیلنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ میں کس سے باتیں کرتی اور اپنا حال دل بیان کرتی؟ دونوں بڑی بہنیں اور میرے بھائی میں پڑھ رہے تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے۔ وہ صرف چھٹیوں میں گھر آیا کرتے تھے۔ بابا جان نے دوبارہ شادی نہ کی، حالانکہ دادا اور دادی نے بہت زور لگایا۔ تایا چچا بھی مشورہ دیتے تھے کہ دوسری شادی کر لو، مگر بابا جان میری ماں سے محبت کرتے تھے، ان کو بھلا نہیں سکے۔ اماں کو طلاق دینے کے بعد بابا جان کی زندگی ادھوری ہو گئی، جیسے ہر خوشی کھو گئی ہو۔ وہ ہر کسی سے لا تعلق ہوتے گئے، جبکہ چچا نے خوب ترقی کی، کئی بار الیکشن جیتا اور اعلیٰ عہدے پائے۔ وہ ایک کامیاب زندگی بسر کر رہے تھے اور خاندانی دولت میں ڈھیروں اضافہ کر رہے تھے، جبکہ والد صاحب ایک درویش مند آدمی تھے بن کر رہ گئے تھے۔ بابا جان کی سوچ ہمارے خاندان کے ہر فرد سے قطعی مختلف تھی۔ وہ دولت سے زیادہ پیار کو اہمیت دیتے تھے۔ جب انہوں نے امی جان کو طلاق دی، وہ اعلیٰ عہدے پر تھے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ زندگی کی ہر دلکشی سے بے نیاز ہو گئے۔ میری بہنوں اور بھائی کو بھی دادا چچا سنبھال رہے تھے، وہی ان کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ٹھہرے۔ بیوی سے جدائی کے بعد بابا جان نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مری ہلز پر دادا اور تایا چچا ہی ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔
इन दोनों दादा का कारोबार रोज बरोज तरक्की पर था। इन्होंने छोटे बेटे की सियासी पोजीशन से खूब फायदा उठाया और कारोबार दूसरे मुल्कों तक फैला दिया। साथ ही बाबा जान को भी बैरूने मुल्क भिजवा दिया ताकि वहां जाकर अपनी साबिका बीवी और पिछली जिंदगी को भूल जाएं। लेकिन यूरोप जाकर भी बाबा की जिंदगी बेहतर ना हो सकी। वो कारोबार को भी सही तरह से ना संभाल सके। जब इंसान को दौलत की हवस ना हो, वो कारोबार भी तरक्की नहीं कर सकता। अम्मी की शादी मामू ने कहीं और कर दी। बाबा ने सुना तो इस बात का सदमा किया और बीमार हो गए, मगर अब दुश्मनी गहरी हो चुकी थी। वो किसी तौर पर मेरी माँ से नहीं मिल सकते थे। पहले से ही नाना और मामू ने इस अमर को मुहाल बना दिया था। खुदा जाने अम्मी किस हाल में थी, अपने बच्चों और उनके बाप को भुला चुकी थी या नहीं, ये इन्हीं को पता था। मेरी बहनें और भाई अपने हाल में मस्त थे, मगर मैं माँ के पास तकरीबन 11 बरस रही थी, इसलिए इनको नहीं भूल सकती थी। रात को उठ उठ कर इन्हें याद करती और रोती थी। 11 बरस की बच्ची माँ से कितनी अटैच हो सकती है, आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं। ये ऐसी उम्र होती है जब बच्ची को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मगर जालिम मुफाद परस्त अपनों ने ही ममता को, बच्चों और बच्चों को ममता से जुदा कर रखा था। सच है, दौलत और इक़्तिदार की हवस बहुत बुरी बला है। ये इंसान से इंसानियत और आदम से आदमियत छीन लेती है। जिन दिनों मैं 5वीं में थी, मेरे भाई समर को बैरूने मुल्क पढ़ने के लिए भिजवा दिया गया। मैं अपने भाई से मोहब्बत करती थी। वो छुट्टियों में घर आता, बहुत खुश होती। अब और भी तन्हा और चुप चुप रहने लगी थी। स्कूल में किसी से मेरी दोस्ती ना हुई, बस हर वक्त पढ़ाई में मसरूफ रहती थी। यही सबब था कि मेरी तालीम कारकर्दगी बहुत अच्छी थी और ज़हीन तालिबात में मेरा शुमार होता था। मैट्रिक के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसी दौरान मेरी बड़ी बहन की शादी एक वजीर के बेटे से हो गई। वो अमेरिका चली गई, मैं और तनहा हो गई। मुझको बड़ी बहन का जो सहारा था वो भी ना रहा। मैंने एफएससी में बहुत मेहनत की और अच्छे नंबर लिए। मेरा मेरिट बन गया। मैं मेडिकल में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन ताया जान को खानदान की लड़कियों का डॉक्टर बनना पसंद नहीं था। इन्होंने दादा को कहकर मेरा मेडिकल का दाखिला रुकवा दिया। बाबा जान चाहते थे कि मैं मुकाबले का इम्तिहान पास करूं। मैं सख्त दिल बर्दाश्ता थी। इसी अफसुर्दगी में मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया, मगर मेरी बहन अमीना ने समझाया कि बेवकूफ़ मत बनो, पढ़ाई जारी रखो, बाबा जान की ख्वाहिश पूरी करो और बाद में मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर लेना। अमीना बाजू की हिम्मत दिलाने से दोबारा कॉलेज जाने पर रजामंद हो गई और बीए के इम्तिहान की तैयारी करने लगी। इसी दौरान अमीना का रिश्ता ताया के दोस्त के बेटे के लिए आ गया। ये लड़का सही ना था, शक्ल सूरत का भी गया गुजरा था। अमीना आला तालीम हासिल करना चाहती थी, मगर इस रिश्ते से ताया और चचा जान के बहुत से सियासी मुफाद वाबस्ता थे। इन्होंने अमीना को मजबूर किया कि रिश्ता कबूल कर ले। वो किसी तरह नहीं मानी। जब ज्यादा मजबूर करने लगे तो इसने जज्बात में आकर ज्यादा मिकदार में ख्वाब आवर गोलियां खा ली। यूं मेरी बहन बड़ी जवानी में इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अमीना की बेवक्त मौत का मुझको बहुत दिलचा सदमा हुआ। इसकी सूरत हूबहू अम्मी जान जैसी थी, बल्कि वो माँ की तस्वीर लगती थी। बाबा जान इसको बहुत चाहते थे। जब इनको इतला मिली कि अमीना ने खुदकुशी कर ली है तो वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे। इन दिनों बाबा जान अमेरिका में थे। उनको वहाँ इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। वो खामोश रहते और इन पर खुद फरामोशी की सी कैफियत तारी रहती। इन दिनों मेरा भाई अली इनके पास था, जो इनको संभाल रहा था। इसको भी अमीना के मरने का सख्त सदमा था, लेकिन ये पता नहीं था कि इसकी बहन ताया और चचा की जबरदस्ती शादी पर मजबूर करने की वजह से मरी है। अमीना का मिजाज अपने दादा पर गया था। वो जिद्दी तबीयत की थी और किसी के फैसले को कबूल करने से कासिर थी। इसने जान दे दी, मगर नापसंदीदा रिश्ते को कबूल नहीं किया। इन्हीं दिनों कुछ मुखालिफिन ने चचा पर हमला कर दिया। वो तो बाल बाल बच गए, लेकिन दादा जान को गोलियां लगी और वो जाए वकू पर वफात पा गए। ये एक और सदमा था। दादा जान मेरा ख्याल रखते थे, वो भी ना रहे। मैं कली तौर पर ताया और चचा वगैरह के रहमो करम पर रह गई। अब मैं दिन रात दुआ करती थी कि अपनी बड़ी बहन और अली के पास अमेरिका चली जाऊं, क्योंकि वालिद भी वहां थे और इनको मेरी अशद जरूरत थी। मैंने भाई को फोन पर कहा कि मुझे आप लोगों के पास आना है। बाजी समीना को भी कहा। इन लोगों ने कोशिश करके बुलवा लिया। वालिद से मिली, वो बहुत अफसुर्दा थे, मुझको गले लगाकर रो पड़े। तब मैंने जाना कि वो कितने मजबूर हैं। इनका इलाज चल रहा था, इसलिए पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। मैं और अली इनका बहुत ख्याल रखते थे, इनको खुश रखने की कोशिश करते थे।
क्योंकि 2 दिन में सिर्फ एक आध जुमला बोलते थे और बिल्कुल नहीं मुस्कुराते थे। जल्दी मैंने समझ लिया कि इनको कोई बीमारी नहीं है, बस इनकी एक ख्याली दुनिया थी जिसमें वो जिंदा थे। वो अपने माजी को जहन में दोहराते रहते थे, बीते दिनों की यादों में सुकून पाते थे और ख्यालों में हमारी माँ से बातें करते थे। बाबा जान माजी में जी रहे थे, इस तरह वो खुद भी माजी का एक हिस्सा बनते जा रहे थे। माँ के साथ गुजारे माहों साल मेरे बाप का कुल असासा थे। अब मुझको अंदाजा हुआ कि तलाक कितनी बुरी चीज होती है और ये इंसान के जीवन को कैसे बर्बाद कर देती है। इसलिए दीन ने इसको एक नापसंदीदा अमर कहा है। बाजी और अली ने बहुत चाहा कि बाबा जान दूसरी शादी कर ले, मगर इन्होंने ना की। पार्क में बैठ जाना, घंटों बैठे रहना या फिर लंबी वॉक और मुसव्वरी, यही इनके पसंदीदा मशागिल थे। वो ज्यादातर ऐसी तस्वीर बनाते जो उदास लम्हों का मजहर होती। अपनी तस्वीरों में डल कलर्स इस्तेमाल करते, कभी खजान रसीदा पत्तों को पेंट करते और कभी डूबती शाम के मनाजिर को कैनवस पर उतारते रहते थे। वालिद साहब शायरी भी करते थे, मगर वो अपने इशार को छुपा कर रखते थे। इन्होंने मेरी वालदा की बेशुमार पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स बनाए हुए थे। अपनी जगह शाहकार थी, ताहम इन्हें कभी तस्वीरी नुमाइश में शामिल न किया। बाबा की अजीबो गरीब तबीयत थी, इतनी गहरी खामोशी में जीते थे कि इनको कोई समझ नहीं पाता था। डॉक्टरों ने काफी ख्वाबावर अद्वियात इस्तेमाल कराई थी, जिनसे इनकी यादाश्त पर गहरा असर हुआ था। वो बात करते करते भूल जाते थे और कभी कभी तो चंद लम्हों के लिए अपने बच्चों तक को पहचान नहीं पाते थे। हम सबका यही ख्याल था, अगर वो दूसरी शादी कर लेते तो फिर से जिंदगी की खुशियों की तरफ लौट सकते थे, मगर ऐसा ना हो सका। मुल्क में एक बार फिर इलेक्शन की गहमा गहमी हो गई। चचा ने हम सबको परदेश से बुलवाया। इलेक्शन की कैंपेन में मेरे भाई को गोली लग गई। अली जख्मों की ताब ना ला सका, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। शायद कि वो अमीना की तरह बहुत कम जिंदगी लेकर आया था। बाजी को गहरा सदमा हुआ, मगर वो शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ थी। उनकी दुनिया बसी हुई थी। कुछ दिन रहकर अपनी दुनिया में वापस लौट गई, मगर मैं मातम के लिए अकेली रह गई। पहले जिंदगी में दुख बढ़े थे, अब तो उम्मीद का आखिरी चिराग भी गुल हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। ये अंधोनाक खबर सुनकर खुदा जाने माँ का क्या हाल हुआ होगा। चूंकि माँ की दूसरी शादी दादा जान के सियासी मुखालिफिन में हुई थी, हम इनसे मिलते भी नहीं थे। काश इन दिनों माँ से मिल सकती, इनके गले लगकर रो सकती, मगर मेरे हवास छिन गए और किसी बात का होश ना रहा। ताया और चचा ने मुझे वापस बाबा के पास अमेरिका जाने ना दिया, क्योंकि मैं अपने बाप की जायदाद की वारिस थी। बाजी अपना हिस्सा ले चुकी थी, मगर मेरे हिस्से की जायदाद अभी ताया और चचा के कब्जे में थी। अली की 1 मिनट के लिए दिल से नहीं जाती थी याद। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरा और बाबा का ख्याल रखता था। इसकी जायदाद भी अब रिश्तेदारों ने संभाल ली, जिसकी वजह से मुझ पर पाबंदियां लगा दी। मैं कहीं नहीं आ जा सकती थी। बाबा अस्पताल में थे, जिनकी देखभाल इनके दोस्त कर रहे थे। जब मैं रो रो कर अदमुई हो गई तो ताया ने मुझे पढ़ने की इजाजत दे दी। यूं मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया, मगर यूनिवर्सिटी हमारे गांव से दूर थी, लिहाजा मैं वहां हॉस्टल में रहने लगी ताकि मुकाबले का इम्तिहान दे सकूं। सभी कहते थे कि हुस्ना बहुत खूबसूरत और नेक सीरत लड़की है। मैं एक मॉडर्न और मतमूल खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद हमेशा सादा लिबास पहनती थी। इस सादगी में भी अंदाज पुरवकार था, लिहाजा यूनिवर्सिटी में लोग मेरी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते थे। इस दौरान बहुत से लड़कों ने मेरी जानिब कदम बढ़ाना चाहा, मगर मैं अपनी जात के खौल में ऐसी बंद थी कि कोई आगे बढ़ने की जुर्रत ना कर सका। हत्ता कि मेरे एक लाइक क्लास फेलोज ने मुझको जिंदगी का साथी बनाने की पेशकश की, तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं शादी के बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि अपनी खानदानी रवायात में जकड़ी हुई हूँ। मैं तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, जिसकी इजाजत बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैं अपनी तालीम में कम रहती थी, क्योंकि मुझे नमाज और तलावत कुरान में सुकून मिलता था। हमने एमए के पेपर्स दिए तो सब लड़कियां इम्तिहान से फारिग होने के बाद अपने अपने घरों को जाने लगी। अब चंद लड़कियां हॉस्टल में रह गईं। तभी ताया ने गाड़ी भिजवाई और मैं ड्राइवर के साथ घर आ गई। घर आकर पता चला कि मैं मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी ना कर सकूंगी। ताया ने मुझको खर्चात के लिए रकम देनी बंद कर दी और वो मेरी शादी भी नहीं करना चाहते थे कि कहीं मेरी जायदाद हाथ से ना निकल जाए। वो चाहते थे कि मेरा निकाह अपने बेटे से कर दें, जबकि वो पहले से शादीशुदा था।
इलाज से बाबा जान की हालत बेहतर हो गई। वो मुझसे मिलना चाहते थे। इन्होंने चचा को खत लिखा कि मेरी बेटी को अमेरिका भेज दो ताकि मैं इसे अपने पास रख सकूं। मगर ताया अब्बू ने बाबा को मेरे बारे में गलत बातें लिख भेजी और यूं इनको मेरी तरफ से बदजन कर दिया। बाबा जो थोड़े बहुत ठीक हुए थे, इस सदमे से फिर बीमार पड़ गए। इनको ज़हनी अमराज के अस्पताल भेज दिया गया। 2 बच्चों की मौत के बाद मैं ही इनका वाहिद सहारा थी। इनकी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी। मेरे बारे में गलत बातें पहुंचाई गई तो इनकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। इन्होंने ताया को लिखा कि इस गलत किरदार की बेटी से मेरा कोई वास्ता नहीं, आप लोग जहां चाहें इसकी शादी कर दें। यूं ताया ने ना मुझे मुकाबले का इम्तिहान देने दिया और ना वालिद के पास अमरीका जाने दिया। खुदा की मर्जी, ताया फोत हो गए तो जायदाद के करता धरता उनके बेटे हो गए जो शादीशुदा थे और औलादें जवान थी। रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी। वो लोग मुझको जबरदस्ती घर ले आए। ये लोग वो थे जिन्होंने मेरे वालिद का हंसता बसता घर उजाड़ा और हम बच्चे उम्र भर वालिदैन की मोहब्बत से महरूम रहे। जिंदगी की सख्तियां सहते सहते मैं जवान हुई तो इनके लालच और खुदगर्जी ने मेरी जिंदगी को बेरंग कर दिया। मैं जो सूरत और सीरत में यकता थी, अपनी ज़ात के हिसार में कैद होकर रह गई। अपनी अकल और जहानत से तालीम की मंजिलें तय की तो इन्होंने मेरी पाकीज़गी पर तोहमतें लगा दी ताकि मैं माशरे में अपना मुकाम ना बना सकूं। तब मुझ पर भी बाबा की तरह अफसुर्दगी के दौरे पड़ने लगे। इन्होंने मुझको इलाज के बहाने मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया, जहां खाली खाली नजरों से सबको देखती तो वो कहते कि हुस्ना अब कभी किसी को पहचान नहीं सकेगी। और मैं सोचती थी कि दुनिया कैसी जगह है, अच्छा है जो मैं किसी को ना पहचान सकूं। अब तो अपनों के जुल्म बर्दाश्त करते करते मैं अपनी जात से भी बेगाना हो गई थी। होशो हवास में होकर भी खुद को पागल दीवाना जाहिर करती हूँ। कम से कम इस तरह अपनों के मजीद जुल्म सितम से तो महफूज हो गई हूँ। जब भी कोई घर आता है मेरे रिश्तेदार इनको यही बताते हैं कि इसको कभी कभार पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम घर के लोग इससे डरते हैं। जब इसको दौरा पड़ेगा हम हुस्ना को मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर आ जाएंगे। मैंने भी दिल में अहद कर लिया था कि किसी से कोई बात नहीं करूंगी। मैं घर वालों से अब कलाम नहीं करती थी। हर वक्त खामोश रहती हूँ। ये मुखातिब हूँ तो बस टुकटुकी बांध कर देखती रहती हूँ, मुंह से कुछ नहीं कहती। आज मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त फरहत आई तो मैंने इससे जी भर के बातें की। हमने कमरा बंद कर लिया। मैंने फरहत को बताया कि ताया चचा के घर वाले मुझे खतरनाक समझते हैं, हालांकि मुझे कोई दौरा वगैरह नहीं पड़ता। फरहत इस जमाने में खोई हुई थी जब हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। कहने लगी तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हारा चेहरा इतना मासूम और पाकीज़ा था कि आंखें देखती रह जाती थी। तुम इन दिनों भी खामोश, तबाह और अपने खोल में बंद रहने वाली एक संजीदा उदास लड़की थी। अपनी जिंदगी के बारे में दूसरों को बताकर हमदर्दियां हासिल करना तुमको पसंद नहीं था, इसलिए तुम में कशिश थी और तुम एक सरबस्ता राज लगती थी। इस वजह से मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हाँ फरहत, अब मैं एक सरबस्ता राज नहीं हूँ। तुम्हारे सामने मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मगर दूसरों के लिए शायद अब भी एक सरबस्ता राज हूँ। ये कहकर मैंने अपनी कहानी इसको दी कि इसे पोस्ट कर देना। अगर ये शाया हो गई तो बहुत सौ को पता चल जाएगा कि लोग देखने में कुछ होते हैं मगर होते कुछ हैं।